नमस्कार। शारदा स्कूल जरानगर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 हिंदी में चित्र इकाई 1 चित्र के संग संग सीखेंगे। देखो बच्चों, इधर एक अच्छा चित्र दिया गया है। सब लोग अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। ये चित्र ध्यान से देखना। तो इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो एक व्यक्ति है, वो टायर में हवा भर रहा है। कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली अपनी टोकरी में सब्जी भरकर बेचने के लिए जा रही है। गुब्बारे वाला गुब्बारे लेकर बेचने के लिए जा रहा है। एक खंबा है, खंबे पर एक तोता बैठा हुआ है। बिजली के खंभे के नीचे यानी रास्ते पर मोची अपना सामान लेकर बैठा हुआ है। वो क्या सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा कोई गिरा गए तो मैं अपना काम शुरू करूं। रास्ते पर 2 मोटरें जा रही है। एक रिक्शा वाला जा रहा है। रिक्शे में एक ही व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। कुत्ता भी है जो सो रहा है। एक बाइक वाला अपनी बाइक लेकर जा रहा है। बच्चों, चित्र ध्यान से देखना। इसमें से मैं कुछ सवाल आपको पूछूंगी, आपको इसके उत्तर देने हैं। ये चित्र को आपको देखना है, उसमें से प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है। एक વ્યક્તિ છે ઈ ટાયરમાં હવા ભરી રહ્યો છે। પછી તેની પાછળ થાંભલા ઉપર પોપટ બેઠેલો દેખાય છે। એક શાકબકાલાવાળી શાકબકાલું વેચવા માટે જઈ રહી છે। તેના માથે શાકભાજીની ટોકરી છે। ફુગ્ગાવાળો છે ફુગ્ગા વેચવા માટે જઈ રહ્યો છે અને ફુગ્ગાની અંદર હવા ભરેલી છે, તેથી તે ઉડી રહ્યા છે। મોચી છે એ રસ્તા પર બેઠેલો છે। પછી બાજુમાં છે કૂતરું સૂતેલું દેખાય છે। રોડ ઉપર ઘણા બધા વાહનો નીકળી રહ્યા છે। તેમાં 2 મોટરો છે, એક રિક્ષા છે, એક સ્કૂટર છે। રિક્ષાની અંદર એક જ પેસેન્જર બેસેલો દેખાય છે। તો આપણને એવો વિચાર આવે કે આ રિક્ષાની અંદર એક જ પેસેન્જર કેમ બેઠ્યો હશે? તો શું હોય? તો કદાચ એ રિક્ષાવાળાને બીજા પેસેન્જર ન મળ્યા હોય તો પણ એક પેસેન્જર બેઠેલો હોય। જે મોચી બેઠેલો છે એ શું વિચારતો હશે? એ પણ પોતાની પાસે કોઈ ગ્રાહકને આવવા માટેની રાહ જોતો હશે। કોઈ ગ્રાહક તેની પાસે આવે તો તેને બૂટ ચપ્પલ સાંધીને સમા કરી દે। એટલે તે છે રસ્તા પર બેઠો બેઠો ગ્રાહકોની રાહ જોવે છે। ફુગ્ગાવાળો છે એ ફુગ્ગા વેચવા માટે જઈ રહ્યો છે। શાકબકાલાવાળી છે શાકબકાલું વેચવા માટે જઈ રહી છે। તેને માથે જે ટોપરી છે એ આખી શાકભાજીથી ભરેલી દેખાઈ रही છે। बच्चों, अब ये दूसरा चित्र देखो। चित्र वही है पर सब इधर उधर हो गया है। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ये सब टायर फटने की वजह से हुआ है। जब हवा भरने वाला टायर में हवा भर रहा था तब ज्यादा हवा के कारण टायर फट गया। टायर फटने से आवाज आई। आवाज से सब लोग डर गए। जो सब्जी वाली जा रही थी उसके सर से टोकरी गिर गई और उसकी सारी सब्जियां है वो बिखर कर जमीन पर नीचे गिर गई। गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे छूट गए। वो सारे गुब्बारे है वो हवा में उड़ने लगे। मोची का सारा सामान है वो रास्ते पर आ गया। जो कुत्ता सो रहा था वो डर के मारे भाग गया। तोता भी उड़ गया। जो ऑटो वाला है वो सब रास्ते पर से डर गए और इधर उधर देखने लगे। स्कूटर वाला भी इधर देख रहा है, वो भी डर गया है। ये सब क्यों हुआ? तो जो टायर में हवा भरी गई थी उसके टायर फटने की वजह से। जो टायर में जो व्यक्ति हवा भर रहा था वो भी जमीन पर गिर गया है। ये सब टायर फटने की वजह से हो रहा है। तो बाળકો, તમે જોયું ને, ઓલા ચિત્રની અંદર બધું વ્યવસ્થિત ચાલતું હતું। ટાયર વાળો હવા ભરતો હતો, શાકબકાલાવાળી તેની શાકબકાલું વેચવા માટે જઈ રહી હતી, ફુગ્ગાવાળો ફુગ્ગા વેચવા જઈ રહ્યો હતો, મોજી પોતાના ગ્રાહકોની રાહ જોઈ રહ્યો હતો। કૂતરું છે એ શાંતિથી સૂતું હતું।
અને પોપટ પણ થાંભલા ઉપર શાંતિથી બેઠેલો હતો. પણ આ ચિત્રની અંદર બધું અસ્ત વ્યસ્ત થઈ ગયું છે, એટલે બધું આડું અવડું થઈ ગયું છે. તો શું શેના કારણે? તો જે ટાયરની અંદર હવા ભરાવાની હતી એ ટાયર ફાટી ગયું. સ્વાભાવિક છે કે ટાયર જ્યારે ફાટે ત્યારે જોશથી અવાજ આવે, એટલે આ અવાજથી આ લોકો છે એ ડરી ગયા. આજુબાજુમાં જે નીકળતા હતા એ વ્યક્તિઓ છે એ ડરી ગયા. એટલે શું થયું? તો શાકભાજી વાળીના માથે જે ટોપલી હતી એ હેઠે પડી ગઈ અને શાકભાજી બધા છે એ વેરાઈ ગયા. પછી ફુગ્ગાવાળાના હાથમાંથી બધા ફુગ્ગા છૂટીને હવામાં ઉડવા લાગ્યા. તો ફુગ્ગાની અંદર ગેસ ભર્યો હોય એટલે ફુગ્ગા હવામાં ઉડવા માંડે. પછી કૂતરું છે એ ડરી ગયું અને ત્યાંથી ભાગી ગયું. પોપટ પણ થાંભલા ઉપરથી ઉડી ગયો. પછી મોચી છે પોતાનો સામાન લઈને ત્યાં બેઠો હતો. તો સામાન પણ છે એ બધો રસ્તા ઉપર આવી ગયો છે. આ બધું શેના કારણે થયું? તો હવામાં टायर हवा भरवाना कारणे। चलो बच्चों, इसमें से हम आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो आपको चित्र ध्यान से देखना है और जो क्रियाएं हो रही है वो आपको कहनी है और आपकी नोट के अंदर लिखना है। तो प्रश्न लिख लीजिए कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है और इसका उत्तर भी आपको लिखना है। तो क्या क्या क्रियाएं हो रही है? तो हवा भरने वाला है, वो टायर में हवा भर रहा है। कुंजनी यानी सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जी बेचने के लिए जा रही है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। जो खंभा है उस पर एक तोता बैठा हुआ है। कुत्ता रास्ते पर लेटा हुआ है। रास्ते पर मोची भी बैठा हुआ है। मोची भी रास्ते पर बैठा हुआ है। रास्ते पर कुछ वाहन जा रहे हैं जिसमें स्कूटर वाला है, रिक्शे वाला है और 2 गाड़ियां भी है। ये सब क्रियाएं पहले चित्र में हो रही है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? बच्चों, आप सबको तो मालूम होगा, आपने तो गुब्बारे देखे हैं। जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है या गैस भरी जाती है तब गुब्बारे हवा में उड़ते हैं, इसीलिए गुब्बारे है वो हवा में उड़ रहे हैं। बच्चों, मेरा तीसरा प्रश्न है, टायर में हवा क्यों भरी जाती है? सोच के बताना। आप सब साइकिल चलाते हैं इसलिए आपको तो मालूम होना चाहिए कि टायर में हवा क्यों भरी जाती है। तो इसका उत्तर है, टायर में हवा कम होने से या बिल्कुल ना होने के बाद ही हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा हो जाता है और उससे साइकिल ठीक से चलती है, इसीलिए साइकिल में के टायर में हवा भरी जाती है। बच्चों, इस चित्र को देखो। इस चित्र में एक कुत्ता बैठा हुआ है, पर कैसे है? पूरा मुंह लटका कर। तो ऐसे कुत्ता क्यों बैठा होगा? सोचो सोचो, कुत्ता मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तो ऐसे क्यों बैठा होगा? तो इसका उत्तर है, कुत्ता है वो आराम कर रहा है, शायद उसको खाने के लिए नहीं मिला है, इसलिए वो मुंह लटका कर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। चलो बच्चों, अब मेरा दूसरा प्रश्न है, कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली है, कहाँ कहाँ जा सकती है? सब्जी बेचने के लिए वह कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुंजड़ी है वो सब्जी बेचने के लिए घर घर या गली गली जा सकती है। बच्चों, मेरा दूसरा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा होगा? रिक्शे के अंदर एक ही यात्री क्यों बैठा होगा? तो शायद रिक्शे वाले को कोई दूसरा ग्राहक या दूसरे यात्री नहीं मिले हैं, इसीलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा होगा। चलो बच्चों, अब एक दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद मैं आपको प्रश्न करूंगी, उसके उत्तर आपको देने हैं। तो मेरा प्रश्न है,
टायर फटने की वजह से क्या क्या हुआ? टायर फटने की वजह से क्या क्या हुआ? तो मैंने आपको आगे भी बताया है, टायर फटने की वजह से जो व्यक्ति टायर में हवा भर रहा था वो गिर गया। कुजड़ीन है वो अपनी सब्जियां बेचने जा रही थी, उसके सर से टोकरी नीचे गिर गई और सारी सब्जियां भी नीचे गिर गई। गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हैं वो हवा में उड़ गए। तोता जो खंभे पर बैठा था वो उड़ गया। कुत्ता भी भाग गया और जो मोची बैठा था उसका सारा सामान है वो रास्ते पर आ गया। ये सब घटनाएं टायर फटने की वजह से हुई है। अब हम आगे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। टायर के अलावा कौन कौन सी चीजें जो फट सकती है? टायर के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो फट सकती है? तो हम देखते हैं, टायर के अलावा इसमें गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, वो फट सकते हैं। फुटबॉल है वो फट सकता है। बास्केटबॉल भी फट सकता है। तकिया, मून वॉकर आदि चीजें हैं वो फट सकती है। चलो बच्चों, अब ये रास्ते पर की चीजें देखो। देख रहे हो? और इसमें मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? जब रिक्शे वाला जा रहा था वो बाइक से क्यों टकराया? तो आगे कौन है? बाइक वाला। पीछे कौन है? रिक्शे वाला। तो बाइक वाला है वो देखो गलत ढंग से बाइक चला रहा है। गलत ढंग से बाइक चलाने की वजह से रिक्शे वाला है वो बाइक वाले से टकरा जाता है। बच्चों, टायर फटने की वजह से बहुत सारी चीजों पर उसका प्रभाव पड़ा है। तो ऐसी कौन सी चीजें है जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा? टायर फटने की वजह से उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें आपको बतानी है। तो देखो चित्र, इस चित्र में ऐसी दो चीजें हैं, रास्ते पर जा रही है। जैसे कि दो कार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता टायर फटने की वजह से। रिक्शे वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ता टायर वजह से फटने की वजह से। इसलिए ये दो चीजों को कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है। बच्चों, ये जो मोची है वो रास्ते पर क्यों आ गया? सोच के बताओ। मोची जो बैठा था रास्ते के किनारे पे वो रास्ते पर आ गया। उसका सारा सामान भी रास्ते पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, टायर फटने की आवाज सुनकर मोची डर गया। घबरा कर उसकी सारी चीजें है वो रास्ते पर आ गई, वो भी रास्ते पर आ गया। इस वजह से मोची को भी टायर फटने की असर हुई है। बच्चों, मैंने जितने भी प्रश्न आपको पूछे हैं वो सारे आपको आपकी नोटबुक में अंदर लिख लेने हैं और उसके उत्तर भी लिख लेने हैं। ठीक है? मजा आया? आगे भी हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। आभार।